تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات. التحیات میں عبادت کی کتنی قسموں کا ذکر ہے؟ 3. کون کون سی؟ التحیات کا معنی کیا ہے؟ التحیات ما معنی؟ آپ پڑھتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا معنی ہے اس کا؟ قولی عبادات. اور الصلوات عبادات. فعلی عبادات کی نہیں کہا جاتا ہے؟ جس میں ہمارا وجود حرکت کرے، یعنی جسمانی عبادات جسے کہہ سکتے ہیں آپ. اور تیسری قسم ہے الطیبات. کیا معنی؟ مالی عبادات. یہ عبادت کیسے ہوتی ہے؟ کسی کا مال کھا کر، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے مال دے کر اللہ کی راہ میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آپ سے سوال یہ ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف. آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی تعریف کر دیں کیا ہے؟ یا یہ بتائیں کہ آج پہلے دن سے بندگی کسے کہتے ہیں؟ عبادت کو. جی ہاں، وہ قول و فعل، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضامندی کے مطابق ہو. یعنی ہر وہ قول و فعل جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے. جس سے اللہ پسند کرتا ہے قول و عمل، وہ عبادت ہے. اچھا، اب ہے عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے نا. آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ آپ بولیں گے پڑھنے کے لیے آئے. آنے کی بنیاد کیا ہے؟ تعلیم. تو عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ توحید نہیں، بنیاد نماز تو عبادت ہے. دو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے یوں ذکر کیا. میں آیت پڑھوں گا اور آپ نے بتانا ہے. نہیں، میں نے آیت پڑھنی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس آیت میں جو بنیاد ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. امید اور خوف، یہ بنیاد ہے. امید، کسی عبادت کرتے وقت امید ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کا فضل، اللہ کی جنت، اللہ کے دیدار. یہ امید ہوتی ہے. خوف کیا ہوتا ہے؟ عبادت نہ کی اللہ ناراض ہوگا، جہنم میں ڈال دے گا. تو امید اور خوف یہ عبادت کی بنیاد ہے. تو عبادت کی تعریف بھی ہو گئی، قول و عمل، بنیاد بھی پتہ چل گئی، خوف اور امید. عبادت کی بنیادی 3 اقسام پتہ چل گئی ہیں آپ کو: قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت. باقی عبادت کی انواع ہیں، انواع. وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ، اچھا بولنا، برائی سے بچنا، یہ عبادت کی انواع ہیں. ٹھیک ہے؟ تعریف، بنیاد، اقسام اور انواع، یہ 4 چیزیں جاننا ضروری ہے آپ کو عبادت کے تعلق سے. جی بالکل نہیں ہے، وطر میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 120 120 سے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علی اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ
काना रसूलुल्लाह सल्लम युक्सिरु अन यकूला फी रुकूइही व सुजूदिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, 119 के मसाइल नहीं लिखे, एक ही मसला लिखा था ना, बता दिया था। हदीस में मज़कूर दुआ को पढ़ना मसनून अमल है। बस जो बुनियादी मसाइल है हम सिर्फ उस पर तवज्जो देंगे ताकि ज्यादा हदीसें पढ़ सकें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नहीं नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी नमाज इस सूरत के नाजिल होने के बाद। कौन सी सूरत? इदा जा नसरुल्लाहि वल फथ। इस सूरत के नाजिल होने के बाद, इल्ला मगर यकून फीहा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सूरत के नाजिल होने के बाद आप नमाज के अंदर इस दुआ को पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। एक हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रुकू और सजदे दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। रुकू में हम दुआ कौन से पढ़ते हैं? सजदे में सुब्हान रब्बियल आला। इसके अलावा कौन सी दुआ आती है आपको? इसके अलावा कोई दुआ आती है किसी को? यानी ये दुआ याद है? ये दुआ मैंने याद कब करवाई? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक। ये दुआ सबने सुनानी है, याद करके आनी है अगली क्लास में इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जो सूरत बताई गई है ना, इदा जा नसरुल्लाह, इस सूरत की के एतबार से अगर आपसे सवाल हो कुरान करीम की आखिरी सूरत कौन सी है जो नाजिल हो, तो क्या कहेंगे? सूरह काफिरून, सूरह नसर। अच्छा, इसमें नबी इस्लाम को फतह मक्का की बशारत दी गई है, हाँ? फतूहात की बशारत है। इसमें नबी इस्लाम की वफात की इत्तला भी है, नबी इस्लाम की वफात की इत्तला भी है। कैसे? जब मजलिस का इख्तिताम होता है तो उसमें क्या करना होता है? कफारा मजलिस की दुआ। वो क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आपकी मजलिस खत्म होगी तो अल्लाह की हम्द, सना और इस्तिगफार। इसमें कहा गया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम आपका मिशन मुकम्मल हो गया। इदा जा नसरुल्लाहि वल फथ व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब तस्बीहात और इस्तिगफार कसरत से करें आप। और अपनी जिंदगी के इख्तिताम में जो अलामात आपके सामने जाहिर हो जाएं, उनमें से एक अलामत यह है, अब तो नहीं पता चलेगा ना, फरिश्ता आकर बताएगा भी आप तैयारी शुरू कर दें जी। नबी इस्लाम को, नबी को तो आकर फरिश्ता बताता है, अब आपके जाने का वक्त आ गया। अल्लाह की तरफ से इशारात भी होते हैं, हमें भी एक इशारा मिलता है। वो कौन सा इशारा है? आपको कोई इशारा मिला है? कौन सा इशारा मिलता है? वो है 60 साल की उम्र। नबी इस्लाम का फरमान है 60 साल से लेकर 70 साल के बीच में मेरी उम्मत की उम्र है। बहुत ही शाज़ और नादिर लोग होंगे जो 70 साल को क्रॉस करेंगे। लिमिट उम्र है ये। इसका मतलब 60 साल के हो जाएं तो अब तो यकीन समझ लें कि किसी भी वक्त फरिश्ता आया। अब करना क्या है आपने? इस उम्र में जाकर आपकी जबान पर अक्सर क्या हो? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल
اچھا آپ نے سنا نہیں، چلیں ٹھیک ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ اختتام اچھا بنانے کے لیے کہا گیا میں. ہمارا ماضی کیسا گزرا ہے اللہ اس کو نہیں دیکھے گا. حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بنیاد یہ کہ آپ کا خاتمہ کس پر ہوا ہے. مثلا ایک آدمی کی وہ یعنی قصے موجود ہے حدیث میں جس کو پڑھ کر یہ بات واضح ہوتی ہے. ایک قصہ یہ ہے، ایک صحابی جنگ احد میں مسلمان ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ٹھیک ہے جاؤ. ہاتھ میں کھجوریں تھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا الی جنت، یہ جنت ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کی طرف، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو صحابی نے کہا کہ میدان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جنت یہاں ہے؟ تو فرمایا ہاں جنت یہاں ہے. تو جو کھجوریں کھا رہے تھے صحابی اس کو پھینک دی. جب جنت میرے سامنے ہے تو کھجوریں کھا کر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ کودا اور سیدھا جنت جو جہاد میں چلا گیا، لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے سچی بات کی تھی تو اللہ نے اس کو سچا کر دیا. جب ارادہ پختہ ہو تو اللہ آپ کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. اور حدیث میں ایک صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اجیرا کثیرا عمیلا قلیلا. عمل تو بہت تھوڑا کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے، ڈائریکٹ مسلمان ہوا، میدان جہاد میں آئے اور شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا عمل بہت کم کیا لیکن اجر بہت بڑا مل گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی. مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیا سمجھے آپ؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. اختتام اچھا ہونا چاہیے. آپ کا ماضی 50 سال گناہوں میں گزرا ہے، 60 سال گناہوں میں گزرا ہے. آ جائیں اللہ کی طرف، توبہ کریں تو آپ کے 60 سالوں کی پرواہ نہیں ہوگی. اگر آپ نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی تو اللہ نہیں بولے گا 60 سال کا حساب دو، گناہ معاف ہو گئے. ہاں اللہ یہ پوچھے گا اے بندے یہ کیا؟ ہوگا بندے نے اعتراف کرنا ہے تو اللہ نے بالآخر کہنا ہے کہ میں نے تو یہ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دی. اب خود بولے گا اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ، وہ تو نے تذکرہ نہیں کیا اس کا. وہ یہودی کا بچہ جو نبی الاسلام کی خدمت کرتا تھا بیمار ہوا، نبی الاسلام کو پتا چلا، آپ اس کے پاس گئے، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا. تو نبی الاسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. نبی الاسلام کی خدمت کرنے والا وہ یہودی بچہ، نبی الاسلام اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بات مان لو ابو القاسم کی. تو اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اور روح نکل گئی اس کی. نبی الاسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفات اس ذات کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. کیا عمل کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا اختتام اچھا بنانا ہوگا. اچھا اب سوال یہ ہے، اللہ نے بھی شرط لگائی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں مرنا. اب مجھے اور آپ کو کیسے اختتام اچھا نصیب ہو، کیسے ہوگا؟ ہمیشہ اچھے سوٹ میں رہنا چاہیے، اچھے لباس میں. ایسے اچھا خاتمہ نصیب ہوگا آپ کو. اچھا کھاتے پیتے رہنا چاہیے تاکہ اختتام اچھا ہو. بالکل نہیں، بالکل نہیں. اچھا عمل کرتے رہنا چاہیے. جس عمل کو آپ زیادہ کریں گے اسی عمل پر موت آئے گی. اچھے عمل کو
मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें। और ये इख्तिताम इसलिए अच्छा जरूरी करना है कि जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा, जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। शराब पीते हुए मरा, पीते हुए उठेगा। खुदकुशी करते हुए मरा, खुदकुशी करते हुए उठेगा, सजा भी वही मिलेगी। नेकी करते हुए मरेगा तो नेकी करते हुए उठेगा। सजदे में था तो सजदे में उठेगा, कुरान पढ़ रहा था वो कुरान पढ़ते हुए उठेगा। वो आपने हदीस पढ़ी होगी ना, हाजी जो मैदान हज में सवारी से गिरा और शहीद हो गया, तो नबी इस्लाम ने फरमाया था कि इसे इन दो चादरों में ही कफन देना, चेहरे को नहीं ढांपना, खुशबू नहीं लगानी, इसलिए कि कल क़यामत के दिन जब कब्र से उठेगा तो तलबिया पढ़ते हुए उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। कितनी एजाज की बात है। इसलिए मजलिस अच्छी हो, अमल अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, अखलाक अच्छा हो, किसी को तंग नहीं करना, किसी को कोई मुसीबत में नहीं डालना। और उसके लिए आपको एक काम करना है, और वो काम ये है, नबी इस्लाम का किसी को तकलीफ ना दो, ये भी सदका है, ये भी नेकी है। जी अपनी माँ यानी अपनी मौत पहले नहीं, अपनी मौत नहीं मांग सकता कोई भी, मना है। आप ये कह सकते हैं अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, व अल्लाह जब तक जिंदगी बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे देना। ये नहीं कि पहले इसे मारना बाद में मुझे मारना, ये कह लें दोनों को एक साथ मारना, ये भी नहीं सही हो सकता है। ये मसला भी तो है ना कि बुढ़ापे से आपने पनाह मांगी है, रजील उम्र से आपने दुआ मांग मांग कर उसको 120 साल का कर दिया, लेकिन उठा सकते नहीं आप उनको, चला सकते नहीं आप उनको, खिला सकते नहीं आप, फिर आप कहते हैं बन गए। वरना आज कोई किसी का सहारा बनने के काबिल नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, यही औलाद माशा इस्लामी तहजीब गैरों से ली हुई है, जो आज की नौजवान नस्ल जो है इससे मुतासिर हो चुकी है। हाँ, माँ बाप के लिए दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ करते रहें। आवाज आ रही है? ठीक है, मसाइल लिख लें इस हदीस के।
حدیث میں موجود دعا کو کثرت سے پڑھنا مسنون ہے. دوسرا مسئلہ، زندگی کے اختتام، قوما تو نشان لگا کر، مجلس کے اختتام، دعا کے اختتام، عبادت کے اختتام، میں استغفار کثرت سے کرنا مطلوب ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے انسان سے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، انجانے میں بھی عبادت میں کمی ہو جائے تو زندگی میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، اختتام پذیر ہو چکی ہے اس کی زندگی، تو اب وہ جو خطائیں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو صغیر اور کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، استغفار ان کو مٹا دے گا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، استغفار کا مطلب ہے کا مطلب طلب کرنا. استغفار کا مطلب ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا مطالبہ کرنا اللہ سے. گناہوں پر پردہ ڈالنے کا مطالبہ کرنا اللہ سے. اور جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان گناہوں کو جو تو نے چھپا رکھا ہے نا، مٹا دے ان کو. عفو میں مٹانا مطلوب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے گناہوں کو مٹا دے. اللہم باعد بینی، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے یہی کہا جاتا ہے اللہ میرے گناہوں کو دو ڈال. مطلوب کا مطلب ہے مطالبہ ہے ہم سے کہ کثرت سے استغفار کریں. توبہ سے، ہماری جو توبہ ہوتی ہے، اس توبہ سے ہمارے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہوتے ہیں. خود قرآن میں ہے نا، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، سچی توبہ سے اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور پھر نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. چار کام ہو گئے. استغفار، اللہ پہلے پردہ ڈال دے، پھر معافی، اللہ مٹا دے، پھر توبہ کریں. توبہ سے مطلب یہ کہ اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے. اور پھر جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے، وہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے.
पहला क्या, इस्तिगफार, पर्दा डाल दे। दूसरा माफी, मतलब गुनाह माफ कर दे, मिटा दे। और तीसरा है तौबा। तौबा का फायदा क्या है, वो बुराइयां नेकियों में तब्दील हो जाती हैं। चौथा है नेकियां कसरत से करें, क्योंकि नेकियां गुनाह का कफारा बन जाती हैं। इख्तिताम की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इख्तिताम की दुआ है। जी जी, कोई भी मजलिस हो। अच्छा, दो तरह की मजलिस होती है। अगर मजलिस दीनी है तो आप, ये पानी अच्छा है, इस पर आप पैकिंग कर दें तो ये महफूज हो गया, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कब होगा इस्तेमाल, आखिरत में नेकी बनकर हमारे सामने आएगा। और अगर बुराइयां थी इसके अंदर, बुराइयां थी, तो आपने अल्लाह ताला से क्या मांगा है, इस्तिगफार, तो वो बुराइयां अल्लाह गिलास खाली करके अता कर देगा कि इस मजलिस में जो बुराइयां थी मिटा दी अल्लाह ने। तो वो दुआ, अगर बुराई हुई तो उसका कफारा बन जाएगी, और अगर वो नेकी थी तो मोहर लग जाएगी, और वो कल क्यामत के दिन इंसान के सामने अच्छाई के साथ आएगी। कितना जरूरी है इस दुआ को पढ़ना। ये नबी इस्लाम की हमसे मोहब्बत है। इस वक्त ये करें, इस वक्त ये करें, इस वक्त ये करें, इस वक्त ये करें, आपके लिए बेहतरी, आपके लिए बेहतरी, और हम वो करते नहीं है। घर में आने की दुआ, जाने की दुआ, बैतुल खुला में दाखिल निकलने की, और सोने की, जागने की, खाने की, पीने की, सेब खाने की दुआ सुनाएं, बिस्मिल्लाह। कोई भी चीज खाएं पिए बिस्मिल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्रूट खाएं तो कोई और दुआ है, चावल खाएं तो कोई और दुआ है, बिस्मिल्लाह ही है। अगले हदीस पढ़ते हैं। वितर का बयान। पहले हम थोड़ी सी बातें आपको बता दूं वितर के ताल्लुक से। वितर के अंदर 3 ऐसे काम है जो नाजायज होते हैं। कौन से बताएं। वितर के अंदर 3 काम खिलाफ शरीयत की जाते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है किसी एक भी सही हदीस में। नंबर एक, दुआए कुनूत के वक्त, कुनूत वितर के वक्त रफल यदैन करना। जब दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं तो रफल यदैन करके पढ़ना, एक। दूसरा, दुआ पढ़ने के बाद हाथ चेहरे पर फेरना। हमने दुआ पढ़ी, उसके बाद वो कुनूत नाज़िला है। कुनूत नाज़िला में हाथ उठाए जाते हैं, लेकिन चेहरे पर हाथ फेरना साबित ही नहीं है। ये नमाज के अंदर एक ऐसा अमल है जिसकी शरीयत में कोई भी दलील नहीं है। देखिए, नमाज एक ऐसा अमल है जो दलील पर कायम है, इसकी तो कोई दलील नहीं है। 2 हो गए। और दूसरा यह है वितर को मगरिब की तरह पढ़ना। 3 वितर को मगरिब की तरह पढ़ना, यानी तशहुद करना दूसरी रकत में। वितर की दूसरी रकत में तशहुद करना, वितर की दुआ पढ़ने से पहले रफुल यदैन करना, वितर की दुआ पढ़ के चेहरे पर हाथ फेरना। ये 3 वो काम होते हैं जिसका सबूत किसी एक भी सही हदीस में नहीं है, तवातुर से हो रहे हैं। अल्लाह माइना नस्ताईन का पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या है जी। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, कुनूते वितर में हाथ उठाना भी साबित नहीं है। एक है कुनूते नाजिला, एक है कुनूते वितर। कुनूते नाजिला और कुनूते वितर में क्या फर्क है?
कुनूत नाज़िला जो होती है किसी मुसीबत के वक्त की जाती है दुआ। कोई आफत आ गई, इज्तिमाई तौर पर जो दुआ की जाती है फर्ज नमाजों में, उसको कुनूत नाज़िला कहते हैं। उसमें हाथ उठाना साबित है, उसमें हाथ उठाना साबित है कुनूत नाज़िला में। लेकिन कुनूत वितर में हाथ उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसमें दो कौल सहाबा के जिक्र किए जाते हैं जिनकी सनद में भी कलाम है। सहाबा के दो कौल पेश किए जाते हैं कि वो ये हाथ उठाया करते थे, उसकी भी सनद सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुनूते वितर की जो दुआ है वो रुकू से पहले या बाद में? रुकू से पहले है। बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसमें जायज है, उसका जिक्र आता है हदीस में, ठीक है, क्योंकि कुनूत नाज़िला कबल रुकू भी और बाद रुकू भी है। इसी तरह कुनूत वितर कबल रुकू और बाद रुकू, लेकिन असल कुनूत वितर रुकू से पहले है और कुनूत नाज़िला रुकू के बाद है। एक है जायज, एक है असल, तो फर्क है। असल यह है कि कुनूत वितर रुकू से पहले हो, और जायज क्या है कुनूत वितर के बाद भी। कुनूत नाज़िला में असल क्या है? रुकू के बाद, रुकू से पहले भी जायज है। अच्छा, अब तरीका क्या हुआ? तरीका वितर की एक और बात कर लेते हैं, वितर की तादाद 1 3 5 7 9 ये नबी इस्लाम ने पढ़े हैं। मुस्नद अहमद की हदीस के मुताबिक आखिरी वितर जो था वो 9, 1 भी पढ़ा, 3 भी पढ़े, 5 भी पढ़े, 7 भी पढ़े और 9 भी। जब एक पढ़ेंगे तो आपने खड़े हुए सूरतुल फातिहा पढ़ी, सना के बाद, और सूरह इखलास पढ़नी है आपने, सूरह इखलास एक जब वितर पढ़ने के बाद आपके हाथ बंधे हुए, आप इसी हालत में कुनूत की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत वाफिनी फीमन आफैत वतवल्लनी फीमन तवल्लैत। आपने दुआ पढ़ी, उसके बाद रुकू में चले गए, और बाकी नमाज उसी तरह है। जब 3 रकत वितर पढ़ेंगे तो उसके 2 तरीके हैं। 3 रकत वितर के 2 तरीके हैं। नंबर 1, पहली रकत में आप खड़े हुए, जिस तरह पढ़ते उसी तरह पढ़ें, सना, सूरतुल फातिहा और सब इस्मा रब्बिकल आला। नबी इस्लाम वितर में जब 3 वितर पढ़ते तो पहले में सब इस्मा रब्बिकल आला, सूरह आला, दूसरे में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरे में सूरह इखलास पढ़ते थे आप। भूल जाने की बात बाद में, पहले कुनूत पढ़ा तो दें आपको, बाद में भुलवा भी देंगे, सही है। इखलास पहली में सूरह आला, दूसरी में सूरतुल काफिरून, तीसरी में कुल हु अल्लाहु अहद। ये तो हो गया किरत। सूरह आला जो है ये 25वें पारे में है या 20वें पारे में? सब इस्मा रब्बिकल आला जी, हाँ 30वें में। शुक्र है, ये पता है आपको कि 30वें में है। आप में से किसको याद है? याद है? माशाल्लाह, आपको भी याद है, आपको तो नहीं। अच्छा, इसको जिसको याद नहीं है तो कम से कम इतना कर ले, वो आखिरी 4-5 आयत याद कर ले। अक्सर नमाज में पढ़ी जाती है ना, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया। हाँ, ये बात है, अगर याद नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आपकी नमाज नहीं होगी, हो जाएगी। आप कोई और सूरत पढ़ लें जो आपको आती है, मसला नहीं है। अलबत्ता सुन्नत ये है कोई और सूरत पढ़ लें तो पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, मैं बता रहा था 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये, आप 1 रकत पढ़ी, फिर आपने दूसरी रकत पढ़ी, आपने सलाम फेर दिया, तशहुद में बैठे। अगर आपने तशहुद में बैठना है तो सलाम फेरना है, पूरी तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम, और उसके बाद 1 रकत के लिए खड़े हो जाएं आप। एक ये तरीका है, नबी इस्लाम से साबित है, और ज्यादा तरीका यही था आपका। उसके बाद दूसरा तरीका ये, पहली रकत पढ़ के खड़े हो जाएं, दूसरी पढ़ के खड़े हो जाएं, तीसरी जब पढ़ेंगे आप तो तीसरी रकत में आपने कुल वल्लाह पढ़ी, खड़े खड़े आपने दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, उसके बाद रुकू में गए, रुकू से खड़े हुए, सजदा किया, और आपने सलाम फेर देना, जो तशहुद और उसके साथ। ये तरीका है। यानी 3 रकात वितर को पढ़ने के 2 तरीके हैं। 2 रकात पढ़ के सलाम फेर कर 1 रकत पढ़ लें,
और दूसरा ये कि तीसरी रकत में बैठे, इससे पहले नहीं बैठना आपने, और आप तीसरी रकत वितर के तौर पर पढ़ें। आप 5 रकत जब वितर पढ़ने हो आपने तो 5वीं में बैठना है आपने, ना पहली में, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, 5वीं में बैठना है आपने, एक साथ 5। इसी तरह जब 7 रकत वितर पढ़ना चाह रहे हैं आप तो 7 भी इसी तरह, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं में बैठना, इससे पहले किसी रकत में नहीं बैठना आपने। जो जी में आए सूरतें पढ़ते रहे। और जब आपने 9 पढ़नी है तो फिर उसका तरीका यह है कि नबी इस्लाम 8वीं रकत में बैठते थे, तशहुद करके दुरूद शरीफ पढ़ के खड़े हो जाते थे और 9वीं रकत वितर की तरह पढ़ते थे। जी हाँ, रुकू से उठकर तो रफ़ुल यदैन वही है जो करते हैं वो करेंगे। इसी पर इक्तिफा करना चाहिए। पसंदीदा दुआ कुनूत, आपने कुनूत वितर पढ़ लिए, इससे बढ़कर पसंदीदा दुआ क्या हो सकती है? इतना कुछ तो अल्लाह से मांग लिया, बाकी क्या रह गया? हाँ, कुनूत नाज़िला इज्तिमाई है, इनफरादी नहीं है। और वो भी आफत आ जाए तो, ऐसा नहीं है कि आपको वो आटा महंगा हो गया तो आपने कुनूत नाज़िला शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। जी हाँ, पढ़ सकते हैं। चलें मसाइल लिखें। पहले हम हदीस पढ़ लें, हदीस तो नहीं पढ़ी हमने। कुनूत वितर का टाइम क्या है? नमाज फजर से पहले पहले। नहीं, तहज्जुद, अच्छा उसको वितर भी कहते हैं इसलिए कि वो वितर हो जाती है वितर के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ने के बाद 3 वितर पढ़ते थे, तो वो क्या हो गई? आपकी रात की नमाज क़ियामुल लैल सलातुल वितर बन गई। आपका फरमान है, आगे हदीस आ रही है, ये पहली हदीस है, आप रात की नमाज 2-2 रकात पढ़ें, जब सुबह होने का खतरा हो तो एक वितर पढ़ लें, आपकी पूरी नमाज ताक हो जाएगी। वितर पढ़ना ही पढ़ना है आपने। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपने तहज्जुद के लिए उठना है तो वितर ना पढ़ें, आप तहज्जुद के साथ वितर पढ़ें। और जब आपको पता है कि मैं नहीं उठ सकता तो वितर पढ़कर सोएं, अपनी नमाज को ताक बनाकर सोएं। एक बंदा वितर पढ़ के सो गया, सुबह उसकी आंख खुल गई, वक्त से पहले ही तहज्जुद का वक्त है, क्या वो तहज्जुद पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ ले, वो तहज्जुद बिल्कुल पढ़ ले, लेकिन वितर को दोबारा नहीं पढ़ेगा। वो एक रात में 2 वितर नहीं पढ़ सकता। अच्छा, क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। नबी इस्लाम रात के अव्वल हिस्से में तहज्जुद पढ़ते थे, दरमियान में भी और आखिर में भी। जिंदगी के आखिर में नबी इस्लाम की तहज्जुद आखिरी वक्त में हुआ करती थी, वरना शुरू में भी, दरमियान में भी। बल्कि आज के हिसाब से जो आजकल हमारा दौर है, उस वक्त तो ईशा की नमाज पढ़ के सो जाया करते थे, तहज्जुद के लिए उठना आसान था। हम तो सोते ही तहज्जुद के वक्त हैं, जब उठना होता है। तो हमें यह करना चाहिए कि हम तहज्जुद पढ़कर सोएं, तहज्जुद पढ़कर सोएं। अबू हुरैरा से आपने यही कहा था, तुम देर तक पढ़ते रहते हो, लिहाजा तहज्जुद पढ़ के सोया करो। नहीं, तहज्जुद में आपको ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है। अगर आप लंबा क़याम करना चाहते हैं, आपको याद नहीं है तो कुरान उठा लें, हाथ में देकर पढ़ना शुरू कर। एक हदीस में आता है कि जिसने 10 आयत और रात को क़याम में पढ़ ली, 10 आयत, अल्लाह ताला उनको गाफिलीन की फहरिस्त से निकाल देगा। जो गाफिल है, बेपरवाह, लापरवाह, अल्लाह उसकी फहरिस्त से निकाल देगा। और जिसने रात के क़याम में 100 आयत पढ़ ली, अल्लाह अपने मुती और फरमाबरदार बंदों की फहरिस्त में दाखिल कर देगा। टाइम खत्म हो चुका है, तो हम वितर का बयान जो है, मसाइल आपको बता दिए हैं। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम वितर की कुछ अहादीस पढ़ लेंगे। जी जी, 3 वितर को पढ़ने का मैंने बताया 2 तरीके हैं 3 वितर को पढ़ने के। नंबर 1, आप 2 रकात पढ़े, पहली में सब्बिस्म रब्बिकल आला,
अगर याद है तो ठीक, वरना कोई भी सूरत। दूसरी में आप कुल या अय्युल काफिरून पढ़ेंगे। आप बैठे जिस तरह नॉर्मल 2 रकात पढ़ते हैं उसी तरह पढ़कर सलाम फेर दें। उसके बाद तीसरे के लिए खड़े हों, आप सूरत फातिहा पढ़ी सना के बाद और सूरह इखलास पढ़ें और उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ें, रुकू में चले जाएं, रुकू से उठें, फिर बकिया नमाज उसी तरह। आपके 3 रकात वितर इस तरह होंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप जब वितर के लिए खड़े हों, पहली रकत पढ़ें, दूसरी रकत पढ़ें, नहीं बैठना आपने, तीसरी रकत पढ़ें, सूरह इखलास के बाद आप दुआ पढ़ें कुनूत वितर, उसके बाद आप उसी तरह नमाज मुकम्मल कर लें जिस तरह करते हैं। 3 काम आपने नहीं करने, ये जहन में रख लें। बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ शरीयत है। इसका वितर से किसी भी सही हदीस में कोई ताल्लुक नहीं है। दुआए कुनूत करते वक्त रफुल यदैन करना यह खिलाफ सुन्नत है, नबी इस्लाम से साबित नहीं है। नंबर 2, हाथ उठाकर दुआ करते वक्त चेहरे पर हाथ नहीं फेरना। आपने हाथ पर चेहरे पर हाथ फेरना यह बिदअत है, नमाज के अंदर सबसे बदतरीन बिदअत है। और तीसरा काम, जब आप 3 रकत पढ़ें तो दूसरी रकत में नहीं बैठना आपने, और अगर बैठना है तो सलाम फेरना होगा। फिर 1 रकत के लिए आपको खड़ा होना, तशहुद करके खड़े होना यह साबित नहीं है। ठीक है जी। हाँ, जिसने 10 पढ़ी अल्लाह गाफिलीन की फेहरिस्त से निकाल देता है, जिसने 100 पढ़ी तो अल्लाह अपने मुती और फरमाबरदार बंदों की फेहरिस्त में से डाल देता है। नहीं, नमाज के बाद तो चेहरे पर आप फेर सकते हैं। अब चूंकि आप इबादत में नहीं है, अब आप हाथ चेहरे पर फेर दें या हाथ को जेब में डाल दें, आपकी मर्जी है। वो भाई होना तो ये चाहिए था ना, आपने बहुत सारा मांगा, उसको जेब में डालें, गिर ना जाए। चेहरे पर फेरने का फायदा नहीं है। नहीं, ये आयत जो मैंने बताई है वो रात के तहज्जुद की नमाज में। जी जी, आखिरी 3 रकात में वही सूरतें पढ़ेंगे। हाँ, कोई दुआए कुनूत किसी को याद नहीं है तो उसका वितर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई दुआए कुनूत भूल गया तो भी उसका वितर हो जाएगा। बिल्कुल देखकर पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये, फ्रेम में आप बड़ी से लगा लें अपने सामने और उसको देख लें, आप देखकर पढ़ते रहें। जी हाँ, आप 10 बजे पढ़ लें, 11 बजे पढ़ लें तहज्जुद की नमाज। एक हदीस है जामे तिर्मिदी की, जो उसकी सनद में थोड़ा सा ज़ोफ है, लेकिन बाद में हसन का है। नबी इस्लाम के बारे में आता है कि आपका फरमान है कि जो बंदा दुआ करता है हाथ उठाकर और अपने चेहरे पर हाथ को फेर लेता है, अल्लाह उसके हाथों को खाली हाथ नहीं लुटाता। उससे इस्तेदलाल करते हैं कि नमाज से हटकर आप हाथ को चेहरे पर फेर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जी, सवाल था। जी जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। याद करना जरूरी है दुआए कुनूत? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। कोई ज्यादा जवाब नहीं दूंगा, बस इतना कहता हूं बहुत जरूरी है, करनी चाहिए, सुन्नत है। मसाइल नहीं लिखवाए, हम बाद में पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा